discuss the second chapter, which is the heat conduction equation. So first chapter was just the introduction of different modes. Now we are moving on to the second chapter, which is heat conduction equation. So you must be wondering that why we are going to discuss heat conduction equation when we have got the Fourier law for the quantification of conduction. So this is straightforward question that you must be thinking, that why we need this heat conduction equation. So if we go back to the conduction, there is a thing which is called Fourier law. So in Fourier, what is the formula for that? That is equal to minus Ka dt by dx. Now K is the material property, so in material we can determine the thermal conductivity, and then A is the area through which the heat is going to be conducted. So that can also be known from the geometry. But the main problem to find here, that is the temperature distribution. This is dt by dx. For the simpler cases, we know the temperature distribution, like temperature difference between these two walls, like left hand side of the wall and the right hand side of the wall. But in more generic cases, this temperature distribution is not known to us freehand. So we need to find temperature distribution or the temperature value in that object so that we can do the conduction analysis. So in chapter number 2, we would derive the governing equation from which we would be able to find this temperature distribution. And we would discuss about different kinds of boundary conditions which are required for the solution of that heat conduction equation, which is a partial differential equation. Okay? And then in chapter number 3 to 5, we would apply that heat conduction equation to different kind of conduction scenarios, right? So I hope that the need to do the conduction analysis in detail is clear to you now. Okay. Now we move on to the chapter number 2, so which is the heat conduction equation. So now, first of all, we just do a review of Fourier law. Fourier law is phenomenological, so it means that it has not been derived from some basic principle. It is kind of based upon observation. Observation that if the area available for transfer is more, than the heat transfer rate would be more. If the temperature difference is more, the heat transfer rate would be more, and if the thickness of the material is less, then heat transfer would occur more rapidly. So it means that we haven't derived it from some basic principles. Okay? Hello, sir. Ji Atif. Ji. Hello, sir. Atif, can you please mute your mic? Sir, I am Faizan here, sir. जी सर बहुत सख्त फ्लू है, खांसी है सर. ओके सर तो यहाँ से किसी को लग ना जाए, तो इसलिए मैं बंद कर दूं. सर इसको इंजेक्शन चाहिए. बेटा you don't need to worry about, you can just mute. ठीक है? Okay जी. So Atif, is it something here going on? If you think, then you may leave the class, right? Whoever is there, that is not appropriate. ठीक है? Okay जी. मैं तो चुप करके बैठा हूँ अभी. कोई ठीक है बेटा, ये वार्निंग है सबके लिए, प्लीज टेक इट सीरियसली. ठीक है? ओके जी. ठीक है आसिफ, if I have mentioned you incorrectly, then that's fine. Okay, so in this we talk about steady state conduction experiment. How do we find these phenomena? Like I discussed that Qx is directly proportional to the perpendicular area and temperature difference, and it is inversely proportional to the
thickness or the length of that object through which conduction is being taken place. Okay, so at the moment, because we have only considered conduction in x direction, so that's why we have taken delta T by delta x. But if we have got temperature difference in y direction, which is this direction, or in the radial direction as well, then it means that temperature conduction would be a phenomena. So for the three-dimensional phenomena, because it is a directional property, so we can write it in terms of a vector, right? So generalized form of the conduction rate equation is, now this is the Fourier law, the second last equation which we have studied up till now. But now it is a little bit more generic form, which is three-dimensional phenomena in which the heat transfer can be occurring in x, y, and z direction. So, in practical engineering applications, we have to kind of cater for this three-dimensional equation to do the calculations for the conduction mode of heat transfer. Okay, so now usually the heat flux is a vector quantity which is perpendicular to the isothermal surface. So what is an isothermal surface? Isothermal surface is the surface on which the temperature is constant. So it means that the heat flux would always be perpendicular to that surface, right? So whether that is a cylinder, that is a plane wall, so for a curved body, we can draw a tangent here and then we can take a perpendicular at each point. So it would give us the direction of that heat flux. Okay, ji. So for the heat flux in x direction, y direction and z direction, they can be written like this. And to summarize the key points of Fourier law, it is a generalization based on experimental observation. It is not something which has been derived from the basic principle, like conservation of mass, conservation of momentum. तो ये चीजें हमने अप्लाई नहीं की, हमने इसको सिर्फ इसको एक बिहेवियर देखा है और उसको क्वांटिफाई कर लिया. And definition of thermal conductivity comes from that observation, and then heat flux is normal to the isothermal surfaces and it is applicable for all metals. It means that conduction can also be occurring in solid, liquid and gases. ठीक है, लेकिन जो लिक्विड एंड गैसेज है उसके अंदर कन्वेक्शन भी आ जाती है, विच इज ड्यू टू द बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड. लेकिन जो मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफ्यूजन हो रही होती है वो कंडक्शन होती है. जी, आइसोथर्मल सर्फेस का मतलब ये कि अगर एक ये वाली सर्फेस है, इसके ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये इसके क्रॉस कभी मूव नहीं करेगी, इसके लॉन्ग, इस सर्फेस के लॉन्ग कभी हीट मूव नहीं करेगी, क्योंकि वो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है. तो वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर मूव करेगी, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर जहाँ पे हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो हो, तो उसके परपेंडिकुलर हो, तब वो हीट कुछ इसकी इधर भी फ्लो कर रही होती है, इधर भी फ्लो कर रही होती है, इन्वर्ट भी कर रही होती है. अभी तो हम ये देख रहे हैं ना कि ये आइसोथर्मल लाइन है, तो फिर उस केस में इट वुड पॉइंट परपेंडिकुलर. अच्छा जी, सो नाउ the main challenge here is to find that how to calculate this temperature gradient. So in order to calculate temperature gradient, if we know the temperature distribution within that material, then we would be able to find this partial T by partial X, partial T by partial Y and partial T by partial Z. So for that we derive heat conduction equation. Okay, so determination of temperature distribution in the medium resulting from the boundary conditions, that is the main challenge for the conduction analysis. And in order to do this, we need to have some basic equation which is called heat diffusion equation. Now, how do we know that from where we derive this heat diffusion equation in terms of temperature? For that, we do the infinitesimal analysis on a element of a big control volume of a material. We take a very small control volume out of it,
and it is a differential control volume. So in this, if you can see that we have got dx, its thickness in x is dx, and in y it is dy and dz. And if you see the flux value at the left wall is qx, at the right wall it is qx plus dx, and similarly qy is the flux entering from the bottom, from the qz is the from the bottom surface, and qz plus dz is the flux which is exiting from the top surface. So for this body, how many fluxes which are coming in? Anyone? For this three-dimensional body, which is basically a cube, how many fluxes are there? In total, there are 6 spaces, so there would be 6 fluxes. Now, how many fluxes are going in and how many fluxes are going out? 3. 3 are coming in and 3 are coming out. Okay, so qx plus dx को हम qx के फॉर्म में लिख सकते हैं? ये तरीका है? सर रिपीट करिएगा। ये qx जो अगर मैं कहूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लक्स है और राइट हैंड साइड के ऊपर फ्लक्स है qx प्लस dx. अब अगर मैंने ये qx प्लस dx को मैंने qx की फॉर्म में लिखना हो, कोई तरीका है क्या? नहीं, कोई ऐसी कोई सीरीज पढ़ी थी हमने जहाँ पे हम कोई फंक्शन वैल्यू जो कि विसिनिटी में निकालना हो एक पॉइंट के, कोई फंक्शन की वैल्यू, टेलर सीरीज हमने पढ़ी थी. टेलर सीरीज, उसका भी यही काम होता है ना कि अगर आपको एक फंक्शन वैल्यू एक जगह पे बताया है और उसकी नेबरिंग में हमने उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो वो हम fx plus dx is equal to fx plus partial f by partial x into dx plus partial square f by partial x square into क्या होता था डेल्टा x square divided by 2 factorial plus so on. तो वो हायर ऑर्डर टर्म्स भी आती थी साथ में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो इसमें हम qx plus dx को qx के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसी तरह qy plus dy को qy के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसके अंदर 2 और चीजें हैं. एक चीज है E डॉट एस टी क्या है? रेट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. और E डॉट जी क्या है? वो है वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन जो कि उसके अंदर हो रही है. तो अगर हम देखें तो हमारे पास कंडक्शन रेट हमने बता दिए, qx, qy और qz हैं. और ये जो वॉल्यूमेट्रिक जनरेशन टर्म है, ये आमतौर पे q डॉट की टर्म में रिप्रेजेंट की जाती है. इस कोर्स में एक टर्म आएगी q डॉट, तो वो होती है वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन टर्म, और वो पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यानी कि उसके यूनिट होंगे वॉट पर मीटर क्यूब. वहां से अगर आपने टोटल वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर वॉट पर मीटर क्यूब यूनिट है, तो अगर आपने टोटल देखनी है अमाउंट रेट एट विच द हीट इज जनरेटेड, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. ठीक है, तो वो हम ऑन द कमिंग स्लाइड अभी देखते हैं. तो जैसे मैंने अभी बात की कि कंडक्शन ही रेट्स अगर निकालने हो हमने अपोजिट साइड पे, जैसे qx plus dx, qy plus dy और qz plus dz, we can determine them by the use of Taylor series. तो टेलर सीरीज हमने पढ़ी थी कि fx plus dx is equal to fx plus partial f by partial x into the distance and plus सेकंड हायर ऑर्डर टर्म. तो जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं हम उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं for the sake of simplicity of analysis. And now qx plus dx is equal to this, and similarly on the same lines we can define qy plus dy and qz plus dz. Right. So the energy source term, which is the volumetric heat generation term, that is, जैसे मैंने अभी बताया कि q dot into dx dy dz है. और ये जो q dot है, it is the rate of heat generation पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ हीट जनरेशन हमें मिल जाएगा. ओके जी. सो अब हम क्योंकि ये एक वॉल्यूम है तो इसके ऊपर हम वो जो चैप्टर 1 में हमने एनर्जी इक्वेशन लिखी थी वो हम अप्लाई कर देंगे. लेकिन और उससे पहले ई डॉट एस टी क्या चीज़ है? रेट ऑफ एनर्जी चेंज. अच्छा जी, रेट ऑफ एनर्जी चेंज कैसे पता चलता है कि कोई
वो चेंज हो रहा है कि नहीं, वो टेम्परेचर चेंज से पता चलता है ना टाइम में। तो अगर आपको याद हो, हमने एक फार्मूला पढ़ा था m डॉट Cp डेल्टा टी, हमने पढ़ा था। तो अगर m Cp डेल्टा टी, तो अगर हम वो किसके इक्वल होता था, डेल्टा E के इक्वल, या फिर उसको डेल्टा H के इक्वल कहते थे, अगर आपको याद हो थर्मो में। तो अगर दोनों साइड पर हम dt से डिवाइड कर देंगे तो जो m होता है वो किसके इक्वल होता है जी, mass is equal to rho into density into वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पे आ गई रो, और वॉल्यूम कहाँ पे है, dx इंटू डी वाई इंटू डी जी। तो रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जी ये किसकी इक्वल है, ये मैस के इक्वल है। सीपी वही है, और डेल्टा टी की जगह हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया पार्शियल टी। और ये जो स्मॉल टी है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन में, एक कैपिटल टी है वो टेम्परेचर का है, और स्मॉल टी किसकी इक्वल है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रेट, क्योंकि जहां पे भी डॉट आ जाएगा ना ये ऊपर, तो उसका मतलब ये है कि हम टाइम रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें जो एनर्जी बैलेंस था ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम, हमें पता है कि वो हमने ये चैप्टर 2 में भी देखा, चैप्टर 1 में देखा था, वो यही था ना कि ई डॉट इन प्लस ये जो हमने डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ी थी एनर्जी इक्वेशन की, that was equal to E dot in plus E dot G minus E dot out is equal to E dot ST. If you are wondering that from where this came, if I go back a little bit, ये अगर देखें यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ हमने पढ़ी थी, जो कि इक्वल थी E dot ST is equal to E dot in minus E dot out plus E dot G, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर 1 में कवर की थी। तो थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखेंगे, ये यहाँ पे अब हम कोर्स आगे जा रहे हैं तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होंगी, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है बेटा? फहद नाम है फखर, कोई एनी क्वेश्चन? अच्छा अगर है तो पूछ। ओके जी, तो नाउ कमिंग बैक टू द, सो दिस वाज द इक्वेशन। नाउ ई डॉट इन, जैसे कि अभी आतिफ ने बताया कि 3 फेसेस पे ई इन हो रही है और 3 फेसेस पे ई आउट हो रही है। जो भी क्यू एक्स प्लस डी एक्स, क्यू वाई प्लस डी वाई एंड क्यू जेड प्लस डी जेड है वो ई डॉट आउट में है, और ई डॉट इन में क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड है। ई डॉट जी किसकी इक्वल है, वो है क्यू डॉट इंटू डी एक्स डी वाई डी जी, और ई डॉट एस टी किसकी इक्वल है, वो ये लिखा हुआ है रो सी पी पार्शियल टी बाई पार्शियल स्मॉल टी इंटू डी एक्स डी वाई डी जी। अच्छा जी, अब अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन। अगर आप देखें तो क्यू एक्स प्लस डी एक्स को हमने लिखा था क्यू एक्स प्लस पार्शियल क्यू एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स। तो क्योंकि क्यू एक्स यहाँ पे है और माइनस क्यू एक्स यहाँ पे होगा, जो कि ये वाली टर्म कहाँ से आई है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स की जगह हम ये जो हमने क्यू एक्स प्लस ये वाली टर्म है, अगर ये पूरी चीज पुट कर दें सर यहाँ पे सर वो पिछली स्लाइड में जो टीटी था वो समझ नहीं आया। दोबारा बताइए सर वो पिछली स्लाइड में जो ये जो सबसे दूसरे नंबर वाला पार्शियल टी बाय पार्शियल टी जो कैपिटल टी है दैट इज फॉर टेम्परेचर एंड स्मॉल टी इज फॉर द टाइम, ठीक है जी। इज इट क्लियर? सर वो पिछली वाली स्लाइड वाला भी समझ नहीं आया। कहाँ पे है वो सर? ये जो सेकंड लास्ट है ये वाला, ये ई डॉट जी जो कह रहे हैं। जी सर ये है वॉल्यूमेट्रिक हीट। ये जो ई डॉट जी लिखा हुआ है ना, ये हमने पढ़ा था ना चैप्टर 1 में कि वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू डॉट इंटू डी एक्स डी वाई डी वी से। और क्यू डॉट क्या चीज है, वो वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, और उसका यूनिट होगा वॉट पर मीटर क्यूब। जी क्लियर है बेटा? आप जी सर क्लियर हो गया सर। ये अगली वाली स्लाइड पे जो पीछे लिखा हुआ था ना वो भी एक दफा दोबारा बता दें। सर ये जो EST है। अच्छा जी, सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? फैजान सर, फैजान। बेटा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती है, अगर उसका एक फार्मूला होता था mCp डेल्टा टी, वो हमने पढ़ा था थर्मो में। जी सर पढ़ा था। और m मैस होता है, तो मैस को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ये लिखी हुई है रो, और वॉल्यूम है dx इंटू dy इंटू dg,
ठीक है। तो अगर हो गया सर, जबरदस्त हो उसके गया। बाद रेट ऑफ चेंज को अगर करें तो पार्शियल टी, वो हमने दोनों साइड पे पार्शियल टी से जो कि स्मॉल टी है उसका डिवाइड करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी आएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो नाउ कमिंग to the location where we were discussing here, because if we put qx plus partial qx by partial x into dx, so qx would be cancelled out with the additional qx here, and similarly qy would be cancelled out with qy here, and we are only left with the gradient terms on the left hand side plus q dot into dx dy dz, and the right hand side remains same. Okay, now what is qx? How can we further write qx in terms of temperature? Is there any way? qx की जगह हमने टेम्परेचर लाना हो, कोई तरीका है हमारे पास? कोई लॉ आपको याद आता है जिसमें qx भी हो और टेम्परेचर भी हो? फॉरियर लॉ है। फोरियर लॉ। तो फोरियर लॉ किसके इक्वल था? qx इज इक्वल टू माइनस के इंटू माइनस के ए इस केस में क्या होगा? डी बाई डी जी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर एरिया है, इंटू पार्शियल टी बाई पार्शियल एक्स। तो अगर वो उसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है तो ये दोनों माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यहाँ पे भी है और पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स ये क्यू एक्स वाली टर्म में भी है, तो वो पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाले रिलेशन हमने पढ़े थे, क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एरिया क्या होगा? डी वाई डी वी, फॉर द क्यू वाई के एरिया परपेंडिकुलर क्या होगा? डी एक्स इंटू डी जी, क्योंकि फेस वो वाला है उसका एरिया ये होगा, और क्यू जी के केस में जो परपेंडिकुलर एरिया है वो है डी एक्स इंटू dy. Okay, so now if we put this here, this minus would be cancelled out with this minus, and here we have got dx dy और dz। तो इस टर्म के अंदर भी dx dy dz आ जाएगा, इसी तरह इस टर्म के अंदर भी ये माइनस कैसे कैंसिल होगा? सर ये माइनस कैसे कैंसिल? जहाँ पे माइनस है qx की डेफिनेशन में। जी जी सर। तो ऊपर भी माइनस है, अगर यहाँ पे हम qx की जगह ये पूरी चीज पुट कर दें, सर माइनस किधर जाएगा? माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। सर माइनस उधर कैसे जाएगा बेटा? क्योंकि ये qx की जगह हमने ये पूरा रिलेशन पुट करना है ना। जी जी सर। तो ये माइनस, क्योंकि ये पूरा रिलेशन जब यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ सर, वो दो माइनस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। थैंक यू। एंड dx इंटू dy dz भी हो जाएगा उसी तरह, आई थिंक यू कैन। तो ये वॉल्यूम यहाँ पे भी आ जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी, तो सारी टर्म्स के अंदर वॉल्यूम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे अगर पहली टर्म देखें तो dx है यहाँ पे और साथ में dy dz है, तो वी कैन सी दैट हियर इज वॉल्यूम, अगेन dy यहाँ पे है तो dx इंटू dz यहाँ पे जब आएगा तो वो भी वॉल्यूम बन जाएगा, एंड सिमिलरली फॉर दिस टर्म। तो वी वुड हैव अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल के टी बाई पार्शियल एक्स, यानी कि अगर के को अभी हमने अंदर रखा हुआ है, लेकिन के अगर एक प्रॉपर्टी हो जो कि एक्स वाई जी पे यानी कि आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा, तो के की वैल्यू, ये जो के टर्म है ये बाहर आ जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा? पार्शियल स्क्वायर टी बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर टी बाई पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर टी बाई पार्शियल जेड स्क्वायर एंड होल इनटू के प्लस क्यू डॉट रो सीपी पार्शियल टी बाई पार्शियल स्मॉल टी। नाउ यू कैन सी दैट वो जो dx dy dz टर्म थी वो क्योंकि हर टर्म के साथ आ रही थी तो वो कैंसिल आउट हो गई। तो ये इक्वेशन हमें बताती क्या है कि दिस दैट एट एनी पॉइंट इन द मीडियम the net rate of energy transferred by conduction into unit volume. Now this is the net rate of energy which is coming in plus the volumetric rate of thermal energy generation must be equal to the rate of change of thermal energy stored within the volume. यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है अगर ये चीज पॉजिटिव होगी then the thermal energy would be increasing, ठीक है। पार्शियल टी capital T divided by partial small t would be a positive thing, which means that the temperature of that body would be increasing, ठीक है। लेकिन अगर steady state operation होगा then in that case
ये राइट हैंड साइड टर्म जिसके अंदर टाइम वेरिएशन है टेम्परेचर की, वो 0 हो जाएगी, और हमारे पास ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो वो वेरिएशन यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे देखें तो हमने इस पूरी इक्वेशन को अगर के से डिवाइड कर दें, ये इक्वेशन 6 को, तो क्यू डॉट अपॉन के यहाँ पे भी आ जाएगा। और अगर आपको याद हो, हमने पढ़ी थी थर्मल डिफ्यूजिविटी, जिसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द एब्जॉर्प्टिविटी, क्योंकि एब्जॉर्प्टिविटी के लिए भी हमने अल्फा यूनिट यूज किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो अल्फा हमने उसके अलावा थर्मल डिफ्यूजिविटी के लिए भी यूज किया था, जिसकी अल्फा वाज इक्वल टू के अपॉन रो सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर के से डिवाइड करेंगे तो वो 1 अपॉन अल्फा बन जाएगा। तो वो वाली टर्म हमने यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा, और अल्फा क्या चीज है यहाँ पे, वो है थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, और अगर हमारे पास स्टेडी स्टेट कंडीशन है, जैसे मैंने अभी बताया था, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर वुड बी इक्वल टू 0, जो कि राइट हैंड साइड है। फिर हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। और अगर हमारे पास सिंपल एक वन डायमेंशनल केस है, तो उस केस में अगर एनर्जी जनरेशन भी नहीं है, तो फिर आप देखिए ये इक्वेशन कितनी सिंप्लीफाई होगी, इक्वेशन 9। नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव टेकन सम कोर्सेज ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन 9 को यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, व्हाट डू वी नीड टू डू? ये सेकंड ऑर्डर है ना, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमने टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स? सर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे 2 दफा। पहली दफा इंटीग्रेट करेंगे तो के डी टी बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू C1। लेकिन क्योंकि के यहाँ पे के को अगर बाहर ले जाए तो डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स के इज इक्वल टू 0, क्योंकि के तो 0 नहीं ना बना सकती इस इक्वेशन को। द ओनली थिंग विच इज मेकिंग इट इक्वल टू 0 दैट इज द डिफरेंशियल पार्ट। अगर के को हम यहाँ डिफरेंशिएशन से बाहर ले जाए फॉर द आइसोट्रोपिक मटीरियल, इस केस में पहली दफा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू C1, और दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वुड बी रिटर्न C1x प्लस C2। अब ये जो सोल्यूशन होता है, ये होता है जेनेरिक सोल्यूशन। यहाँ से अगर हमने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना हो तो C1 और C2 जो कि कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती है। आपने पीडीज का कोर्स पढ़ा होगा, उसके अंदर हम वैल्यूज कैसे फाइंड करते थे? बाउंड्री कंडीशन से। तो वहां पे हम मैथमेटिकल वो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, तो मेथोडोलॉजी वही है जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की है। लेकिन यहाँ पे हम वो फिजिकल बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे जो कि in case of heat transfer we encounter in practical situation. Any boundary condition you can think of. Before we go towards that boundary condition, let us explore our daily experiences about any kind of boundary condition in terms of heat transfer. पहली बाउंड्री कंडीशन तो सबको जानते हैं, जैसे इंसुलेशन होती है। इंसुलेशन इज अ बाउंड्री कंडीशन ना, वो उसका मतलब क्या होता है कि फ्लक्स की वैल्यू 0 है। यही होता है ना कि वो जो जिस सरफेस के ऊपर आप इंसुलेशन लगाते हैं उसका पर्पस यही होता है ना कि उसके अंदर से कोई हीट ना जाए। तो फ्लक्स की वैल्यू आप यू टेंड टू मेक इट इक्वल टू 0। उसके अलावा बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकती है? एनी अदर? कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी एक बाउंड्री कंडीशन है। जैसे घर में मैं दोबारा वही बात करूंगा कि जब कपड़े प्रेस करते हैं तो आयरन के ऊपर से एक कांस्टेंट फ्लक्स की वैल्यू निकल रही होती है। तो फ्लक्स की एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, फ्लक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी तो उस बाउंड्री कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ये हमने थर्मो में भी पढ़ी थी, एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक बाउंड्री, एडियाबैटिक सरफेस होती थी ना जहाँ से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही होती, एडियाबैटिक। कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन भी होती है। उसके अलावा एक बाउंड्री कंडीशन होती है जैसे वो कोई फ्लो ऑफ एयर हो रहा हो ड्यू टू फैन और वो कूलिंग कर रहा हो, उसको कन्वेक्टिव बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 किस्म की बाउंड्री कंडीशन होती हैं।
तो ये हम अभी तो हमने प्लेन वॉल के केस में किया है, इसको हम कर सकते हैं सिलेंड्रिकल केस के लिए भी कंडक्शन इक्वेशन जो कि रेडियल डायरेक्शन में निकालेगी हीट ट्रांसफर, और इसी तरह हम उसको अच्छा जी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करने की क्यों हमें जरूरत पेश आई है, क्योंकि कई बॉडीज ऐसी होती हैं जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है जैसे कि पाइप फ्लो में, ठीक है। फिर उसी तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी हम निकाल सकते हैं इसकी डेरिवेशन। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो 2-3 इक्वेशन हैं ये आपको एज ए फार्मूला शीट गिवन होंगी इन द पेपर। ऑल यू नीड टू डू इज हाउ टू get the temperature distribution by the use of boundary condition, different kinds of boundary condition। ये बात आपको समझ आ रही है? ये इसको हमें क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है, these would be given। और ये अब इक्वेशन 10 आई कैसे है उसके लिए ये प्रॉब्लम 2.33 के अंदर पूरा डिफरेंशियल एनालिसिस करके उन्होंने उसको ड्राइव किया हुआ है। इसी तरह वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स में जो डेरिवेशन है वो पूरा प्रॉब्लम नंबर 2.34 है आपकी बुक का, जिसके अंदर उन्होंने ये पूरी डेरिवेशन शो की हुई है। फॉर योर ओन इंटरेस्ट यू कैन रीड थ्रू दैट हाउ दीज इक्वेशंस हैव बीन डिराइव्ड, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द as an engineer we are more focused toward that how to apply it to a particular situation and find the temperature distribution. So our motive is to apply these equations to find the temperature distribution so that we can find we can apply it in the Fourier law, ठीक है, जो कि जिसके अंदर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है। अब बाउंड्री कंडीशन अगर हमारे पास कोई ट्रांजिएंट फिनोमेना होगा तो उसमें एक इनिशियल कंडीशन भी होगी, जो कि राइट हैंड साइड पे पार्शियल कैपिटल टी डिवाइडेड बाय पार्शियल स्मॉल टी वाली टर्म थी, वो ट्रांजिएंट टर्म थी। तो अगर हमारे पास जो हीट ट्रांसफर का फिनोमेना है अगर वो ट्रांजिएंट है, जैसे हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, तो उस केस में फिर हमें इनिशियल कंडीशन भी चाहिए होगी कि वो बॉडी इनिशियली किस स्टेट पे थी, ठीक है। और अगर वो स्टेडी स्टेट फिनोमेना है देन वी डोंट नीड इनिशियल कंडीशन, क्योंकि वो उस केस में सिर्फ बाउंड्री कंडीशन चाहिए। नहीं, कई चीजें होती हैं जो कि वो भी होती है ना स्टेडी स्टेट फिनोमेना भी तो होते हैं आमतौर पे, जिनको हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो स्टेडी स्टेट है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्या ख्याल है? मेरे ख्याल सारे यानी कि अगर आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो सारे ही ट्रांजिएंट है, लेकिन अगर उसको एक शॉर्टर पीरियड के लिए देखेंगे तो उसके अंदर जो टाइम के लिए आज से टेम्परेचर की वेरिएशन है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। जैसे वही आयरन वाली बात है कि अगर हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, और वो एडजस्ट कर लेते हैं एक जगह पे रखते हैं, तो वो फॉर द टाइम बीइंग वो वहीं पे रहेगी, अनलेस वी स्विच इट ऑन या फिर उस नॉब को और हम मूव करें टू मेक इट मोर हॉट, ठीक है। तो वो जब तक नॉब वहाँ पे है वो तकरीबन मोर और लेस वो टेम्परेचर मेंटेन करेगी बाय स्विचिंग इट ऑफ, स्विचिंग इट ऑन अगेन एंड अगेन, वो कोशिश करेगी कि ये मेंटेन हो टेम्परेचर, ठीक है। तो फॉर द शॉर्टर पीरियड वी कैन टेक इट एज अ स्टेडी स्टेट फिनोमेना, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो एवरीथिंग इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेना, ठीक है। स्टेडी स्टेट तो बहुत कम ही मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इस केस में जो पहली कंडीशन है उसका फ्रेंच वर्ड है, उसको डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन भी कह देते हैं, लेकिन इसमें आप इसको सिंपलिसिटी के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है उसको आप दोबारा उसका एक वर्ड रखा हुआ है, लेकिन आपको वो वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कांस्टेंट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन, यानी कि उसमें क्या है कि ये एक सरफेस के ऊपर एक कांस्टेंट फ्लक्स आपको दिया जा रहा है। जैसे आप घर में जब भी स्टोव ऑन करते हैं तो केटल को जो नीचे से वो फायर के जरिए वो मिलता है, वो बेसिकली एक फ्लक्स होता है, तो वो एक कांस्टेंट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन होती है। और तीसरी बाउंड्री कंडीशन होती है जिसको एडियाबैटिक बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, जिसमें फ्लक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि उसके इसमें अगर 0 आ गया तो के भी हट गया और माइनस भी हट गया। उसमें से ये ग्रेडियंट जो सा है टेम्परेचर ग्रेडियंट एट
एट अ बाउंड्री दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास 3 बाउंड्री कंडीशन अभी तक पड़ी है, एक कांस्टेंट सरफेस, कांस्टेंट हीट फ्लक्स एंड 0 हीट फ्लक्स, जिसको एडियाबैटिक। और जो चौथी बाउंड्री कंडीशन है उसको हम कन्वेक्टिव बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम सराउंडिंग फ्लूइड के जरिए, कन्वेक्शन के जरिए उस सरफेस के ऊपर हम हीट ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, या फिर जो रेडिएटर के अंदर आप कूलिंग ऑफ वाटर करते हैं, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ कन्वेक्टिव बाउंड्री कंडीशन। तो जो भी हीट वो उस सरफेस के ऊपर आ रही होती है, दैट इज बीइंग टेकन अवे बाय द कन्वेक्शन प्रोसेस बाय द सराउंडिंग फ्लूइड। नाउ दिस वाज द these can be shown like this। ठीक है, कि कांस्टेंट सरफेस बाउंड्री कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब हमारे पास कांस्टेंट हीट फ्लक्स है तो उसमें वो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस किस्म की हो जाएगी। लेकिन ये जो इसकी ग्राफिकल फॉर्म है, इस पर ज़्यादा फोकस ना करें। ये जो है ना रिलेशन, इनको हम यूज करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, हाउ टू यूज देम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, और मेरा ख्याल है have we got still some time? So I think there is only 5 minutes left. Is there any query? जी, हमें जब हम, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द अरहम। उन्होंने पूछा है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। रिजल्ट हमें मिलेगा टेम्परेचर की फॉर्म में। अगर देखें ना, ये 6 to 9 जितनी भी इक्वेशन है, इसके अंदर जो मेन वेरिएबल है जो ज्ञान नोन है वो है टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस, एक्स वाई जी एंड टी। ठीक है, अब उसको यूज कर, उसको फोरियर लॉ में कैसे यूज करना है, दैट इज अ सेपरेट। ठीक है, क्योंकि क्वांटिफिकेशन, कंडक्शन की क्वांटिफिकेशन के लिए फोरियर लॉ चाहिए, लेकिन फोरियर लॉ यूज करने के लिए हमें ये टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे हमें टेम्परेचर मिलेगा, हमें कंडक्शन वो रेट नहीं मिलेगा डायरेक्ट, लेकिन अगर टेम्परेचर निकल आएगा तो वहां से रेट भी निकाल सकते। ठीक है, अगर टेम्परेचर निकल आएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी निकल आएगा वहां से, और Q इज इक्वल टू माइनस के पार्शियल टी बाई पार्शियल एक्स से हम देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितनी हीट ट्रांसफर हो। ठीक है जी, anything which is not clear? This was just we only discussed about the conduction equation, and we discussed about the boundary condition। ठीक है, और उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह ये हम प्रॉब्लम करेंगे अगली बार, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीक की 2 आवर्स वाली क्लास होगी, उसमें हम इंशाल्लाह ये कवर कर लेंगे। ठीक है, any question from the DL mode students? हाँ सर। अच्छा जी, then I think we can I can download the attendance, so and I can take the attendance people sitting here, so hopefully I would see you on next Tuesday. So if there is no query, then we can just finish this lesson. सर जा सकते हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। अल्लाह हाफिज।